محترم ناظرین آداب، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں۔ وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ آغاز کرنے سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ پی سی طبقے کی ترقی کے لیے اقدامات و کارکردگی کا سہرا کانگریس کو جاتا ہے۔ پی سی کے نام سے پی آر ایس قاعدہ ایم ایل سی دھرنے کا انعقاد عمل میں لانا مناسب نہیں ہے، ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ نے کیا اظہار۔ ضلع نظام آباد کے کلکٹریٹ میں ایک رکن کمیشن کی تحقیقات مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والوں سے عرضی حاصل کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے سابق جج ڈاکٹر جسٹس شمیم اختر نے خیالات سے کی آگاہی حاصل۔ بلدیاتی انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے مقصد کے تحت کام کرے ضلع سدی پیٹ میں واقع کوہیڑا میں انعقاد عمل میں لائے جانے والے کارکنان کے اجلاس سے ریاستی وزیر پی پربھاکر نے احکامات کیے جاری۔ جرنلسٹ سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے حکومت خصوصی دلچسپی کے تحت کوشش کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں واقع سیکریٹریٹ میں ریاستی وزیر سرینیواس ریڈی نے TUWJ ڈائری کی نقاب کشائی عمل میں لائی۔ چار کھلاڑیوں کو کھیل رتن ایوارڈ دینے کا مرکزی حکومت نے کیا اعلان۔ عالمی شطرنج چیمپئن میں جوکیش، شوٹنگ میں منو بھاکر، ہاکی میں ہرمن پریت سنگھ، پولو اولمپکس میں پروین کمار کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکا کی قیادت میں رائتو بھروسہ پر قیام عمل میں لائے گئے کابینہ سب کمیٹی اختتام پذیر ہوئی۔ فصلوں کو اگانے والے ہر ایک کسان کو رائتو بھروسہ دینے کے تعلق سے کی گئی مشاورت۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ضلع مجلس اتحاد المسلمین قائدین کا دورہ حلقہ آرمور و مختلف صدور و معززین کے ساتھ عمل میں لایا اہم مشاورتی اجلاس۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ضلع صدر محمد فیاض الدین اور شہری صدر شکیل فاضل نے آرمور حلقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمور میں ان کا شاندار پیمانے پر استقبال عمل میں لایا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے آرمور بالکنڈہ بھیمگل کے صدور و اراکین سے ملاقات کرتے ہوئے ایک مشاورتی اجلاس عمل میں لایا اور مختلف امور پر تبادلہ خیال عمل میں لایا۔ اس موقع پر آرمور مجلس کونسل صدر محمد ظہیر علی کے علاوہ ضلع مجلس معتمد اعلیٰ و انچارج معاون کارپوریٹر محمد شہباز احمد، عبدالسلیم، ارشد پاشا، خلیل، عمر فاروق و دیگر موجود تھے۔ البراق ٹورز اینڈ ٹریولز نظام آباد کی جانب سے عمرہ تربیتی کیمپ کا مفتی سعید اکبر صاحب کی صدارت میں انعقاد۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا سید مظہر القاسمی صاحب نے کی شرکت۔ البراق ٹورز اینڈ ٹریولز کے زیر اہتمام عمرہ تربیتی کیمپ کا آج بتاریخ 2 جنوری بروز جمعرات بعد نماز ظہر ایس کوہ نور گیسٹ ہاؤس میں حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب نقشبندی کی صدارت میں انعقاد عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا سید مظہر القاسمی صاحب دامت برکاتہم نے شرکت کرتے ہوئے عازمین کو عمرے کے مطابق تربیت کی۔ اس تربیتی کیمپ میں مہمانان اعزازی کے طور پر حافظ لائق خان صاحب قائد علماء و حفاظ نظام آباد، حضرت مولانا مرزا عظمت اللہ سعید صاحب، حضرت مولانا سید عماد الدین احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی احسان الحق عامر صاحب نے شرکت کی اور حضرت مولانا شجاع الرحمان طلحہ صاحب نے کیمپ کی نگرانی کی۔ اس موقع پر مالکان البراق سید چاند صاحب، سفیان انصاری صاحب، عبد الرزاق صاحب تلنگانہ انچارج البراق کو مدعو کیا گیا۔ نظام آباد انچارج البراق ٹورز اینڈ ٹریولز حافظ عبدالعظیم نے بتایا کہ 7 جنوری کو نظام آباد سے تعلق رکھنے والے 25 افراد پر مشتمل عازمین کو البراق ٹورز اینڈ
اینڈ ٹریولز کی جانب سے روانگی عمل میں لائی جا رہی ہے، جس کے ضمن میں آج تربیتی کیمپ عمل میں لایا گیا اور عازمین کو عمرے کے مطابق معلومات فراہم کی گئی۔ اس ماہ کی 28 تاریخ کو اور ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ خواہش مند حضرات نظام آباد دفتر، جانی فارمیسی، مدینہ عیدگاہ چوراستہ یا فون نمبر 9908728634 پر رابطہ پیدا کرنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ وہاں جگہ ملی تو وہاں پڑھیں گے، اور وہاں جگہ نہیں ملی تو جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھنا ہے۔ لیکن 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ رائٹ سائڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو زمزم کے ڈبے نظر آئیں گے، آپ جائیے اور زمزم پی لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ پیٹ بھر کر زمزم پیتے ہیں، اور جو منافق ہیں وہ پیٹ بھر کر زمزم نہیں پیتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے، اس لیے آپ زمزم اچھی طرح پی لیجیے، اور پھر زمزم جس نیت سے پیئیں گے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کرتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ پیجیے، اور زمزم پینے کے بعد دعا کیجیے، اور جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ بالکل سمجھ نہیں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ آپ کو کچھ دینا ہے، آپ کنجوسی کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، کچھ لینا ہے تو اس میں کنجوسی کرو، لیکن ہم دعا کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں رہتی وہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ایک بیٹا دو، کہ راشن کی دکان ہے کیا زیادہ دیے تو کم ہو جاتا ہے۔ عبادت گاہوں کے قانون پر عمل کرنے سے متعلق بیرسٹر اویسی کی درخواست پر 17 فروری کو ہوگی سپریم کورٹ میں سماعت۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں انہوں نے 1991 کے پلیس آف ورشپ ایکٹ عبادت گاہوں کے قانون کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس قانون کے مطابق 15 اگست 1947 سے پہلے موجود کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار کی بینچ نے حکم دیا ہے کہ بیرسٹر اویسی کی اس درخواست کو اس معاملے پر زیر سماعت دیگر 6 درخواستوں کے ساتھ شامل کیا جائے۔ ان درخواستوں پر 17 فروری کو سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے 12 دسمبر کو 1991 کے پلیس آف ورشپ ایکٹ کے مختلف پہلوؤں پر سماعت کی تھی۔ بینچ نے کہا تھا کہ ہم اس قانون کی حدود، اختیارات اور ساخت کا جائزہ لے رہے ہیں، اس دوران دیگر عدالتوں کو کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے 2 اہم کیسز ہیں، متھورا کی شاہی عیدگاہ مسجد، وارانسی کی گیان واپی مسجد۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملک میں 18 سے زائد ایسے مقدمات زیر سماعت ہیں جن میں سے 10 مساجد سے متعلق ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ 4 ہفتوں میں اپنا موقف پیش کرے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جب تک مرکز اپنا جواب داخل نہیں کرتا ہم سماعت آگے نہیں بڑھا سکتے۔ بی جے پی لیڈر اشونی اپادھیائے، سبرامنیم سوامی، مکتا واچک دیوکی نندن ٹھاکر، کاشی کی راج کماری کرشن پریا، دیگر مذہبی ہندو رہنماؤں نے عبادت گاہوں کے قانون کو غیر آئینی قرار دینے اس کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ جمعیت العلماء ہند، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، گیان واپی مسجد کمیٹی، RJD کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا موقف ہے کہ اس قانون کے خلاف درخواستوں پر غور کرنے سے ملک بھر میں مساجد کے خلاف مقدمات کا سیلاب آ سکتا ہے جو فرقہ وارانہ تنازعات کو جنم دے گا۔ سپریم کورٹ نے تمام فارغین کو ہدایت دی کہ وہ 17 فروری کی سماعت سے پہلے اپنے دلائل اور شواہد جمع کروائے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے پر کوئی نیا مقدمہ دائر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ عدالت کا اگلا حکم نہ آئے۔ یہ کیس ملک کے سیکولر ڈھانچے اور عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ گرلز ہاسٹل کے واش روم میں خفیہ کیمرہ، حیدرآباد کے انجینئرنگ کالج کے پاس طلباء کا احتجاج۔ شہر کے مضافاتی علاقے میرچل کے ایک انجینئرنگ کالج کے گرلز ہاسٹل میں پیش آئے ایک شرمناک واقعے نے طلباء میں برہمی کی لہر پیدا کر دی۔ ہاسٹل کے واش روم میں خفیہ کیمرے نصب ہونے کا انکشاف ہونے پر طلباء نے زبردست احتجاج کیا۔ یہ واقعہ کل رات سامنے آیا جب کچھ طالبات نے شبہ ظاہر کیا کہ ہاسٹل کے واش روم میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے طلباء کالج کے پاس جمع ہو کر احتجاج کرنے لگے۔ طلباء تنظیموں نے الزام عائد کیا کہ یہ حرکت ہاسٹل کے باورچی نے کی ہے جس پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ طلباء نے مطالبہ کیا کہ واش روم میں خفیہ کیمرے نصب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ احتجاجی طلباء کالج کے باہر نعرے بازی کر رہے تھے جس کی وجہ سے ماحول کشیدہ ہو گیا۔ کالج انتظامیہ اور ہاسٹل کے ذمہ داران اس الزام کے حوالے سے فوری طور پر کوئی وضاحت پیش نہ کر سکے جس سے طلباء کے غم و غصوں میں مزید اضافہ ہوا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔
पुलिस ने तुलबा को यकीन दिलाया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी, जो भी जिम्मेदार होगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के इस तयक़ुन के बाद तुलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। तुलबा का मुतालबा है कि इस शर्मनाक वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की जाए। वॉशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब करने वाले अफराद को सख्त सजा दिलवाई जाए। हॉस्टल और कॉलेज में तुलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। ये वाक़या वालिदैन और तुलबा के लिए तशवीश का बायस बन गया है। కంప్లైంట్ తీసుకొని కేసు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. పోలీస్ పాత్ర అంతవరకే. ఏదైనా నేరం జరిగితే నేరంకి సంబంధించిన కేసు రిజిస్టర్ చేయడము, అది చట్ట ప్రకారం ఏం చేయాలో అది చేయడము పోలీస్ బాధ్యత. అంతవరకే పోలీస్ బాధ్యత. అవునా అవునా కాదా? बोधन डिवीजन में बरकी मुलाजमीन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मेगा खून के अतिये कैंप को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमीशन जज वी रवि कुमार ने किया इफ्तिताह। बोधन डिवीजन में बरकी मुलाजमीन की तरफ से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मेगा खून का अतिया कैंप को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वी रवि कुमार के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस खून के अतिये कैंप को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ताउन से इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर आर रविंदर एसी ऑपरेशन निजामाबाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम खून का अतिया कैंप का आगाज अमल में लाना काफी खुशाइंद होने का इजहार किया। खून का अतिया यानी इत्तेफाकी हादसे के सबब पेश आने वाले हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को खून देते हुए कीमती जिंदगी को जाये होने से बचाया जा सकता है और इस तरह का प्रोग्राम बरकी मुलाजमीन की जानिब से क़याम अमल में लाना काबिल तहसीन होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर 3 और 4 माह में खून का अतिया दे सकते हैं। इन्होंने साल 9 के मौके पर खून का अतिया कैंप का क़याम अमल में लाना काबिल सताइश है। इस मौके पर इन्होंने साल 9 की सबको मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ा मोअज़्ज़िज़ मेहमान आर रविंदर ने कहा कि रेड क्रॉस थैलासीमिया मुतासरीन को दी जाने वाले खिदमात की सराहना की। इन्होंने कहा कि इस खून के अतिये कैंप को बरकी मुलाजमीन थैलासीमिया मुतासरीन के लिए क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस चेयरमैन बी अंजीनीलो, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर ADET राजा शेखर, बसावेश्वरा राव, बोधन डिवीजन चेयरमैन नागेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। रुद्रपुर में अम्मा नाना चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम गरीबों में ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लाई गई। रुद्रपुर में अम्मा नाना चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम गरीबों में ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आज अम्मा नाना चैरिटेबल ट्रस्ट की यौम तासीस के मौके पर गरीबों में ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लाने के अलावा आशन पल्ली में ताम का एहतमाम के साथ साथ मुख्तलिफ फलाही खिदमात हर साल की तरह इस साल भी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अम्मा नाना चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हर साल के अलावा माँ बाकी दिनों में फलाही खिदमात अंजाम देते हुए अवाम की खिदमत करने का इजहार किया। అమ్మ నాన్న చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మా ట్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ వ్యవస్థాపక దినం కాబట్టి ఈరోజు కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయటం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఇక్కడ ఈ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దుప్పట్లు, తర్వాత వేరే భోజన కార్యక్రమాలు అక్కడ ఆశాన్పల్లిలో చేయటం జరుగుతుంది. అట్లనే ఏంటంటే ఇటువంటి కార్యక్రమం ప్రతిసారి కంటిన్యూషన్గా చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే భగవంతుడి దయ వల్ల మరి మేము పెట్టాము కాబట్టి మేము ఉన్నన్ని రోజులు ట్రస్ట్ నడవాలనే ఉద్దేశంతో నాకు తోచిన సేవా కార్యక్రమాలు నేను కంటిన్యూషన్ చేసుకుంటూ మరి ఈ రోజే కాకుండా మధ్య మధ్యలో కూడా చేయటం జరుగుతుంది. श्रीकोंडा मंडल के तल्ला रामाडुगु देहात के साकिन बी राहुल ने CM कप आर्चरी मुकाबले जात में गोल्ड मेडल हासिल किया। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तल्ला रामाडुगु देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बी राहुल ने CM कप आर्चरी मुकाबले जात में गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि 19 दिसंबर को इनेकाद अमल में लाए गए जिला सतह के मुकाबले जात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए स्टेट लेवल मुकाबले जात के लिए मुंतखब हुए। 2 दिन पहले इनेकाद अमल में लाए गए स्टेट मुकाबले जात में 33 जिलों ने शिरकत की, जिसमें बी राहुल कंपाउंड 50 मीटर डिवीजन में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। ताहम फाइनल में खम्मम निजामाबाद के मुकाबले जात में भी राहुल ने जिले को फतेह दिलाई। इस मौके पर कोच रविशंकर ने तल्ला रामाडुगु अवाम को मुबारकबाद पेश की। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में काम करने वाले हमाली स्वेपर्स की भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल होने के बायस निजामाबाद मंडल के पॉइंट के रूबरू कारकुनान ने अनोखे तरीके से एहतजाज किया। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में काम करने वाले हमाली स्वेपर्स की भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल होने की वजह से कारकुनान ने निजामाबाद मंडल के पॉइंट के रूबरू घुटने के बल बैठकर एहतजाज किया। इस मौके पर CITUC जिला जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया ने कहा कि सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के तहत हर रोज रियासती अवाम व तुलबा को चावल की फराहमी अमल में लाते हुए अवाम में हुकूमत का नाम रोशन करने के लिए काम करने वाले हमालियों स्वेपर्स के तय हुकूमत की जानिब से लापरवाही करना नामुनासिब होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कीमत में इजाफे
के लिए 13 माह तक महदूद होने वाली यूनियन के तहत जदोजहद करते हुए कीमतों में इजाफा करने वाले जियो देने में लापरवाही करना इन्हें जेबा नहीं देता। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत गुज़िश्ता अक्टूबर के महीने में यूनियन की क़यादत और कमीशन की मौजूदगी में मुनक़िदा मुआहदे से मुतल्लिक़ा जियो की इजराई अमल में लाते हुए कारकुनान को आने वाले बकायाजात 24 जनवरी तक रुपये अमल में लाया जाए और 10 लाख आरोग्य बीमा की सहूलियात की फराहमी अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में यूनियन जिला सेक्रेटरी देवेंद्र, कायदीन फैसल, नागाराजू, जावेद, राजू, वाजिद, ताइलु कारकुनान ने शिरकत। రెండో రోజుకు చేరుకోవటం జరిగింది। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంపూర్ణంగా అన్ని ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్ల పరిధిలో సమ్మె జరుగుతూ ఉన్నది। కానీ కమిషనర్ గారికి కానీ ప్రభుత్వంలో ఇప్పటి నేటికి కూడా చలనం వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు। ఇది చాలా దుర్మార్గం। ప్రజాపాలనలో ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నామని చెప్పేటటువంటి ప్రభుత్వం అధికారులు, అదే రకంగా మంత్రులు ఇవాళ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్లో సమ్మె జరుగుతూ ఉంటే నేటికి కూడా స్పందించకపోవడం ఇది దారుణం। ఇప్పటికే ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థకు సంబంధించి రేషన్ షాపులకు బియ్యం సప్లై ఆగిపోయింది। అదే రకంగా హాస్టల్కు సంబంధించి, మిడ్ డే మీల్ స్కూల్కు సంబంధించి, అంగన్వాడీ సెంటర్లకు సంబంధించి బియ్యం సరఫరా నిలిచిపోయింది। మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందని చెప్పేసి మేము ఏఐటీసీగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం। కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం కవ్వింపు చర్యలకు పోకుండా సివిల్ సప్లై హమాలీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించి ఒప్పుకున్నటువంటి ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో ఆ ఒప్పందం ప్రకారం వెంటనే జీవోని రిలీజ్ చేసి వీళ్ళకు రావాల్సినటువంటి బిల్లులు రేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బకాయిలతో సహా చెల్లించాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। దాంతోపాటు వీళ్లకు 10 లక్షల రూపాయల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాన్ని కూడా అమలు చేయాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। జీవో వచ్చేంత వరకు సమ్మె కొనసాగుతుంది। ఇవాళ ప్రజలకు, విద్యార్థులకు జరిగేటటువంటి అసౌకర్యానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జిల్లా, రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం బాధ్యత వహించాల్సిందిగా ఏఐటీసీగా మేము కోరుతా ఉన్నాం। कॉन्ट्रैक्टर व अहदेदारान की अदम तवज्जो के बायस एडपल्ली मंडल के दोनों देहातों के दरमियान आमद व रफ्त ठप हो चुकी है। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ ब्रह्मनापल्ली जैतापुर देहातों के दरमियान कौमी शाहराह पर कलवट की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। वो गुज़िश्ता दोनों तरफ 12 पाइप की तनसीब अमल में लाना था, लेकिन फिलहाल इसको 6 पाइपों में तब्दील किया गया, जिससे कलवट के करीब हादसात रोनुमा हो रहे हैं। जिससे मुकामी अवाम की जानिब से कलवट की तोसी करते हुए जायद पाइप्स नस्ब करने के लिए R&B अहदेदार से ख्वाहिश करने के बावजूद भी नज़रअंदाज करने से ब्रह्मनापल्ली दही अवाम ने इससे मुतल्लिक़ा कामों को रुकवा दिया। 1 माह गुजर जाने के बावजूद भी कामों का आगाज अमल में ना लाने की वजह से हर रोज दही अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि अहदेदारान खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए नामुकम्मिल कामों को मुकम्मिल करने की ख्वाहिश की बसूरत बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इजहार किया। బాగా ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది। నిన్న ఒక అతను చనిపోయిన శ్మశాన వాడికి పక్కనే ఉన్నది, తీసుకుపోవడానికి బాగా ఇబ్బంది అయింది। మంచినీళ్ళకు సుఖ బాగా ఇబ్బంది అవుతున్నది। వాళ్ళు లోపలికి పోతున్నారు, ఎవరైనా లేటర్ నైట్ పూట పోతున్నారు, పైప్ లెక్కలు పడిపోయారు। అతను నిన్న ఫోన్ చేస్తే అసలు లేపుతలేడు, రెస్పాన్స్ లేపుతలేడు। ఈ అధికారులు కొంచెం పట్టించుకుంటే బాగుంటుంది। మాకైతే బాగా అంటే బాగా ఇబ్బంది అయిపోతున్నది। అలా తిరిగేద్దామని సుఖ అక్కడ రోడ్డు సుఖ మంచిగా పక్క పంట రోడ్డు సుఖ చేయలేదు, మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది। ఇది ఇక్కడ పట్టించుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది అధికారులు కొంచెం। అసలు ఆయన పట్టుకున్నాకైతే ఇంజనీర్ ఫోన్ చేస్తే మాత్రం అసలు రెస్పాన్స్ అవుతలేడు, కాంట్రాక్టర్స్కి ఫోన్ చేస్తే ఆయన లేపుతలేడు ఫోను। ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అంతే, మొత్తం ఫోన్ కట్ చేసేస్తుండే అయిపోయి। रियासत तेलंगाना में कॉरपोरेट की जानिब से तालीम तिब के इस्तेसाल को रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का बहुजना लेफ्ट पार्टी व बहुजना कम्युनिस्ट BLP रियासती सदर डंडी वेंकट ने किया मुतालबा। बहुजना लिफ्ट पार्टी बहुजना कम्युनिस्ट BLP रियासती सदर डंडी वेंकट ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में प्राइवेट कॉरपोरेट की जानिब से तालीम व तिब के इस्तेसाल को रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का मुतालबा किया और कहा कि अवामी हुक्मरानी करने का दावा करने वाले CM रेवंत रेड्डी प्राइवेट कॉरपोरेट तालीम तिब के इस्तेसाल को रोकने के लिए खुसूसी तौर पर कानून का निफाज अमल में लाने की कोशिश की। रियासत भर में वाक़ तमाम जिलों के मराकज़ पर हुकूमत तालीम तिब आम लोगों के लिए दस्तियाब में लाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि बहुजना कम्युनिस्ट BLP की जानिब से शुरू किए जाने वाले एहतजाजी धरने में अवाम की कसीर तादाद हिस्सा लेते हुए हिमायत करने की अपील की। రాష్ట్రంలో విద్యా వైద్యం మొత్తం కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది। ఇవాళ కనీసం ఎవరైనా పేషెంట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాలి అన్నా ఇవాళ లక్షలు, 20 లక్షలు, 15 లక్షలు ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది। ఒక హార్ట్ పేషెంట్ హాస్పిటల్కి పోతే విపరీతమైన దోపిడీ। కాబట్టి వీళ్ళ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ని, అదేవిధంగా కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్ని కట్టడి చేసే విధంగా మరి తెలంగాణ సర్కార్
ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పేసి బహుజన లెఫ్ట్ పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. रायतू भरोसा पर तश्कील दी गई काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। हैदराबाद के सेक्रेटरिएट में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में काबीना की ज़ेली कमेटी इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें विज़रा टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मीटिंग में रायतू भरोसा के तरीक़ेकार पर बहस व मुबाहिसा किया। वो फसल उगाने वाले हर एक किसान को रायतू भरोसा देने के लिए बहस की गई। रायतू भरोसा से मुताल्लिक़ किसानों से दरख्वास्तें लेने का फैसला लिया गया। 5 जनवरी से 7 तारीख तक दरख्वास्तें लेने का इम्कान है। रायतू भरोसा के तरीक़ेकार पर कल मुनक़िद होने वाले रियासती काबीना के इजलास में खत्मा फैसला लेते हुए जनवरी 14 तारीख से रायतू भरोसा को नाफिज किया जाएगा। ताहम रायतू भरोसा के मामले में अब तक अवाम व मुख्तलिफ तंजीमों से हुकूमत ने तजावीज़ हासिल की है। इस मरहले के दौरान किसी भी किस्म की शर्त के बगैर रायतू भरोसा को रूबे अमल में लाने के लिए बाज़ ने पाबंदियाँ आयद की तो दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बीसी के नाम से धरना करने का फैसला करने वाली बीआरएस एमएलसी के कविता को टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ कुछ सवालात करते हुए जवाब देने का किया मुतालबा। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 10 साल से इख्तिदार में रहने वाले बीआरएस पार्टी ने बीसी तबके को धोखा दिया है। वो कानूनी तरीके से हासिल होने वाले फंड्स को किसी एक साल में भी खर्च किए बगैर धोखा देने का इजहार किया और अब इख्तिदार से महरूम होने के बाद बीसी इस पर मुनाफिकाना मोहब्बत जताते हुए के कविता मगरमच्छ के आंसू बहाने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि बीसी को फायदा पहुंचाना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। वो इख्तिदार से महरूम होने के बाद बीआरएस को बीसी की याद आने का इन्होंने इजहार किया। वो इसके अलावा मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बीसी तबके के साथ नाइंसाफी करते हुए धोखा देने का इन्होंने इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि कविता लिखकर इस कैंप का दाग लगने की वजह से बीआरएस पार्टी में इनकी अहमियत कम हो गई है, इसलिए उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीसी के नाम पर मुनाफिकाना ड्रामा शुरू करने का इजहार किया। दर्ज फहरिस्त ज़ातों में ज़ेली दर्जा बंदी पर तफसीली मुताले के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा हाई कोर्ट के साबिक़ा जज डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर से मुलाहिक़ा एक रुकन कमीशन शहर निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में अवामी समाअत का किया गया इनेकाद। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दर्ज फहरिस्त ज़ात के अवामी नुमाइंदे, गेजेटेड नॉन गेजेटेड एडवोकेट, दर्ज फहरिस्त ज़ात के अंजुमनों के कायदीन व मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से दरख्वास्तें वसूल की और दर्जा बंदी पर इनके ख्यालात से आगाही हासिल की। मालालू दलित, जंगामुलू, चिंडुलू, बेड़ा बुडागर, जंगामुलू, बांडला, मंगू के अलावा मुख्तलिफ बरादरियों के नुमाइंदे ने शिरकत करते हुए अपने ख्यालात से वाकिफ करवाते हुए दरख्वास्तें हवाले किया। इस मौके पर चिंदुलू व दीगर ने रिवायती लिबास ज़ेबतन करते हुए अपने पेशे को जाहिर किया और कमीशन को अपनी हालात से आगाह किया। वो समाजी व इक़्तिसादी पसमानदगी की वजह से तालीम और मुलाजिमतों के शोबे में दरपेश मुश्किलात का जिक्र करते हुए बहुत से लोगों ने दर्जा बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि दीगर ने कमीशन के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। సో అందులో భాగంగా సార్ అన్ని ఉమ్మడి జిల్లాల్లో కూడా మీటింగ్స్ అనేది పబ్లిక్ హీరింగ్ ఇది అన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. సో అందులో భాగంగా ఈ రోజు మనకి నిజామాబాద్ అండ్ కామారెడ్డి రెండు జిల్లాలకి సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్స్ కానీ అదేవిధంగా మనకి వివిధ సంఘాలు అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చే వినతులు ఈరోజు స్వీకరించడానికి ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాకి రావడం జరిగింది. సార్తో పాటు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ గారు కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో సార్ని వెల్కమ్ చేస్తూ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ నమస్కారాలు. మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు వేరే జిల్లాలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి ఇంకా ఇతర జిల్లాలో కూడా పర్యటించి అక్కడ రిప్రజెంటేషన్స్ తీసుకోవటం, అక్కడ వచ్చినటువంటి వారిని క్షుణ్ణంగా పూర్తిగా వినటం, అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దీని తర్వాత జస్ట్ ఇదేంటంటే ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యేటందుకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఏది చెప్పదలుచుకున్నా కూడా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా నిర్భయంగా కమిషన్ ముందు చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విషయాలైనా కూడా మీరు రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాలన్నా కూడా రాతపూర్వకంగా ఇవ్వచ్చు. हिंदुस्तान के आला तरीन खेल का अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का मरकजी हुकूमत ने किया ऐलान।
साल 2024 के लिए 4 खिलाड़ियों को इस बाविखार अवार्ड के लिए इंतखाब किया गया। शतरंज में डी जोकेश, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलेटिक्स सेक्शन में प्रवीण कुमार, शूटिंग सेक्शन में मानू भास्कर को अवार्ड दिया गया और इसके अलावा 32 अफराद को अर्जुन, 5 अफराद को ध्रुवीनाचार्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। अर्जुन अवार्ड हासिल करने वालों में 17 अफराद पैरा एथलेट में होना खास अहमियत रखती है। 17 जनवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में क़याम अमल में लाए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम में सदर द्रौपदी मुर्मू के हाथों अवार्ड हासिल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में फतेह हासिल करने के मकसद के तहत काम करने का रियासती वजीर पी प्रभाकर ने अहकामात किए जारी। जिला सिद्दीपेट के कोहिडा में नेकाद अमल में लाए गए कारकुनान के इजलास में रियासती वजीर पी प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ने ज़राअत व किसानों के फलाह व बहबूद के लिए 30,000 करोड़ मुखत्तस किया है। आज काबीना की ज़ेली कमेटी में रायतू भरोसा पर फैसला लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि संक्रांति के मौके पर रायतू भरोसा और अनकरीब नए राशन कार्ड की फराहमी अमल में लाई जाएगी। इन्होंने BRS हुकूमत ने रियासत का खजाना खाली करने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने मजीद कहा कि इंदिरमा घरों का अलाटमेंट शफाफ तरीके से होने का किया। जर्नलिस्ट से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए हमारी हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने का रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। सेक्रेटरीट में वाक़े दफ्तर में रियासत तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन 2025 मीडिया डायरी की रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग व शहरी ताल्लुकात वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जर्नलिस्ट से मुताल्लिक़ घर, हेल्थ कार्ड, एक्रीडेशन कार्ड के मसाइल को हल करने का इजहार किया। हुकूमत जर्नलिस्ट की फलाह व बहबूदी के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में महकमे इत्तलात, शहरी ताल्लुकात महकमे कमिश्नर एस हरीश डी अमर के अलावा दीगर ने शिरकत की। फार्मूला ई कार रेस की तहकीकात में ईडी ने तेजी लाई। कार रेस के इनेकाद से मुताल्लिक माली लेन देन पर ईडी ओहदेदारान ने गैर मुल्की कंपनी को खत तहरीर किया और इसके अलावा दूसरी तरफ बेमा के कवायद की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात की जा रही है। केस की तहकीकात के तहत ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक हिमायत नगर इंडियन ओवरसीज बैंक को भी नोटिस जारी की गई है और इसके अलावा केस में खास तौर पर किसकी हिदायत से गैर मुल्की कंपनी को फंड्स की अदायगी अमल में लाने के बारे में ईडी फोकस रखने के ताल्लुक से जानकारी हासिल हुई है और इसी तरह से केस में A3 के तौर पर मुल्जिम होने वाले HMDA के साबिका चीफ इंजीनियर BLS रेड्डी को भी ईडी ओहदेदारों ने तहकीकात के लिए आने के ताल्लुक से नोटिस जारी किया है, लेकिन वो तहकीकात के लिए हाजिर नहीं हुए और इन्हें तहकीकात में हाजिर होने के लिए मजीद कुछ वक्त देने के बारे में ईडी जॉइंट डायरेक्टर रोहित आनंद के दफ्तर को ईमेल रवाना किया। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी को कांग्रेस कायदीन ने साल नौ की दी मुबारकबाद। हैदराबाद में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन व जिला कांग्रेस पार्टी कायद मानाला मोहन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए साल नौ की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ वेलपुर मार्केट कमेटी चेयरमैन मुतियम रेड्डी, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन नरसा रेड्डी, मुप्काल मंडल कांग्रेस सदर मुतियम रेड्डी, जिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी J रवि ने भी साल नौ की मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। BC तबके की तरक्की के लिए इक़दामात व कारकर्दगी का सहरा कांग्रेस को जाता है। BC के नाम से BRS कायदा MLC धरने का इनेकाद अमल में लाना मुनासिब नहीं है। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में एक रुकन कमीशन की तहकीकात मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक रखने वालों से अर्जी हासिल करते हुए हाई कोर्ट के साबिका जज डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर ने ख्यालात से की आगाही हासिल। बल्दियाती इंतखाबात में फतेह हासिल करने के मकसद के तहत काम करे जिला सिद्दीपेट में वाक़े कोहिडा में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले कारकुनान के इजलास से रियासती वजीर पी प्रभाकर ने अहकामात किए जारी। जर्नलिस्ट से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश कर रही है। हैदराबाद में वाक़े सेक्रेटरीट में रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने TUWJ डायरी की नकाब कुशाई अमल में लाई। चार खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड देने का मरकजी हुकूमत ने किया ऐलान। आलमी शतरंज चैंपियन में जुकेश, शूटिंग में मनु भाकर, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह, पोलो ओलंपिक्स में प्रवीण कुमार को अवार्ड दिया जाएगा। सेक्रेटरीट में डिप्यूटी CM भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में रायतू भरोसा पर क़याम अमल में लाए गए काबीना सब कमेटी
पजीर हुई। फसलों को उगाने वाले हर एक किसान को रायतु भरोसा देने के ताल्लुक से की गई मशाविरत। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।